السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں گوری ہو گوری، یہ ایک افسانہ ہے اور اس کے مصنف یعنی افسانہ نگار جو ہیں وہ سید رفیق حسین ہیں۔ سید رفیق حسین، اولاً تو میں یہ بتا دوں کہ ہم مختصر افسانہ کسے کہتے ہیں، ہم اسے پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہ سنا ہو تو آپ پہلے اسے سن لیں کہ افسانہ کسے کہتے ہیں۔ افسانہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے اور کہانی کو بیان کرنے کا ایک انوکھا انداز ہوتا ہے دراصل، کہ جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں، پڑھنے والے کے دلوں پر ایک تاثر پیدا کیا جاتا ہے، ایک اثر پیدا کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا افسانے کو سننے کے بعد افسانے کو سنتے سنتے اپنے دل پر ایک اثر لے کر اٹھتا ہے۔ افسانہ پڑھتے پڑھتے اس کے دل پر ایک تاثر، ایک ایفیکٹ کہہ لیں، امپیکٹ کہہ لیں، پیدا ہوتا ہے۔ اور افسانہ اصل میں اس میں جو مصنف ہوتا ہے، جو لکھنے والا ہوتا ہے، افسانہ نگار ہوتا ہے، اس کی کریٹیوٹی کا یعنی اس کی تخلیقیت اس کا جو تخلیقی ایٹیٹیوڈ ہے اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ ایک ہی کہانی کو آپ سنائیں، اسی کہانی کو کوئی دوسرا سنائے، دونوں کے سنانے کے انداز میں فرق آ جاتا ہے۔ آپ اس افسانے کو پڑھیں گے گوری ہو گوری تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے سید رفیق حسین نے ہمیں قدرت کے مناظر، ان کی خاص بات کیا ہے کہ فطرتی مناظر کو بڑی خوبصورتی سے دکھاتے ہیں۔ جو نیچرل سینس جس کو ہم بولتے ہیں یا سینریز بولتے ہیں، وہ بڑے خوبصورت طریقے سے اپنے افسانوں کے اندر دکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی جو آس پاس کی چیزیں ہیں، جانور ہیں اور آس پاس کا ماحول ہے، اس کو انسان سے جوڑ کر دکھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور اس میں ایک کنیکشن، ایک تعلق پیدا کرتے ہیں کہ کس طرح سے انسان کی زندگی جانوروں سے جڑی ہوئی ہے، اور جانوروں کے اندر بھی وہ تمام جو ہے ہم کہہ لیں ممتا، ایک خوبی ہے ممتا جو انسانوں کے اندر ہوتی ہے، ماں کے اندر جو رحم ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اسی طرح والدین کے اندر کل ملا کر، اور انسانوں میں ایک دوسرے کے لیے جو ہمدردی ہوا کرتی ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ اس افسانے کے اندر وہی دکھایا گیا ہے کہ جانور بھی کس طرح سے ہمدردی کے احساس سے لبریز ہوتے ہیں۔ باقی میں افسانے کے درمیان گفتگو کر کے کچھ اور باتیں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ چوماسے کی اندھیاری رات تھی۔ چوماسا 4 مہینے جو برسات کا موسم ہوتا ہے، چو مطلب 4، اور خاص طور پہ برسات کے جو 4 مہینے ہیں انہیں چوماسا کہا جاتا ہے۔ اندھیاری رات تھی یعنی چاندنی رات نہیں تھی، چاند مختصر ہوگا، چھوٹا ہوگا، بھیگی بھیگی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی، جھینگروں نے جھنکار مچا رکھی تھی، مینڈک بول رہے تھے ٹر ٹر ٹر، پیپل کے سوکھے ڈگالے پر موٹی شاخ پر الو کہتا تھا ہک ہو۔ بسنتی نے کروٹ لی، پھر منہ پر تھپڑ مارا، بولی ہائے رے ارے رام کیسے ڈانس لاگی، ڈانس مچھر۔ ہاں، تو آپ دیکھیں گے ایک بات تو آپ کو نظر آ رہی ہے، افسانے میں انہوں نے کیا کرا ہے، اودھی زبان کا استعمال، بہت سارے الفاظ ہیں جو اودھی زبان کے ہیں۔ اودھ، آپ جانتے ہیں لکھنؤ کے آس پاس کا علاقہ ہوا کرتا تھا، تو وہاں کی جو زبان ہے اردو کی ہی ایک دوسری شکل ہے، ملتی جلتی، یا ہم زبان دوسری ہی ہے لیکن بنیادی طور پر اس کا ڈھانچہ بھی کھڑی بولی سے بنا ہے جس سے اردو تیار ہوئی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سید رفیق حسین نے اودھی زبان کے کئی سارے الفاظ اس افسانے میں استعمال کیے ہیں، اپنی تصنیف میں جو انہوں نے لکھی ہیں، کہانیاں وغیرہ قصے لکھے ہیں، اس میں استعمال کیے ہیں۔ ایک اور بات ہم نے دیکھی، رفیق حسین نے جانوروں کی آوازوں کا بھی استعمال کیا ہے، وہ ہمیں الگ الگ جانوروں کی آوازیں سناتے ہیں، منظر دکھاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی ایسا لگنے لگتا ہے جیسے ہم کسی ایک جنگلی فضا، ایسی فضا بنا دیتے ہیں، ماحول بنا دیتے ہیں کہ وہاں جانور بھی موجود ہیں، انسان بھی موجود ہیں، اور ان میں آپس میں جو تعلق، زندگی جڑی ہوئی ہے وہ ایک ملی جلی شکل کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ 6 مہینے کا بچہ پاس لیٹا تھا، اس پر ہاتھ رکھ لیا اور بسنتی بولی مری جائے پھر آئے بیٹھا، بولت کیسے ناس بیٹا، ناس پیٹا، بولت کیسے ناس پیٹا، ہک ہو کیسے بولتا ہے، مطلب وہ ہک ہو آواز نکالے جا رہا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے جس کو وہ کہہ رہی ہے کہ مری جائے پھر آئے، پھر آ گیا، میں مری جا رہی ہوں، یہ پھر آ گیا، اور کیسے کیسی آواز، کیسے کیسے بول رہا ہے، ناس پیٹا۔ اجی او جی اٹھو نا، گھگو بولے یعنی الو، مجھے ڈر لاگے تنی اڑائے دے، کچھ اڑا دو مجھے۔ مادھو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ایک اور کردار، ابھی بسنتی ہمیں ایک عورت نظر آئی ہے، اس کے بچے ہیں، دوسرا کردار اس کا غالباً یہ شوہر ہے، مادھو۔ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا، کھٹیا سے، کھاٹ سے، چارپائی سے نیچے پیر لٹکایا، جلدی سے پھر اوپر کھینچ لیا، کیوں؟ گھبرا کر پھر نیچے دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھا، چھوٹا سا کچا گھر تھا، پھوٹی چمنی کے دھوئیں سے کالی لالٹین تھی، دھیمی روشنی میں آنگن بھر جھلجھلا رہا تھا، گھر بھر میں
पानी भरा था। आंगन भर क्या हो रहा था, झलझल, जो चमक पैदा हो जाती है ना, आप देखते हैं पानी के अंदर अगर रोशनी पड़े पानी के ऊपर थोड़ी बहुत, तो उसमें झलझल तारे जिस तरह झलझलाते हैं, चमकते हैं। तो कच्चा घर है उनका, और फूटी चिमनी के धुएं से कालटेन लालटेन काली हो चुकी थी। माधव बोला, जो का हुआ रे, ये क्या हुआ रे? बसंती घबरा कर उठी। जब उसने अपने आसपास पानी देखा माधव ने, तो उसने कहा, ये क्या हुआ? अजी देखत का हो, हरे राम भीका को जगा जगा लो, बच्चे का नाम ले, अरे रमकलिया को जगा लो, पानी आए गया रे, अरे ओ भीका, रामकलिया हो, अरे ओ रमकलिया। सबको उठा रहे हैं, घर में पानी आ गया है, हम देख रहे हैं कि बाढ़ का मंजर है। हाँ, तो आप देखें, अब इस तनासुर तनासुर में देखने की कोशिश करें, तनाजुर में, कि किस तरह बाढ़ के मंजर को, बाढ़ का इंसानों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। और उन लोगों का हाल भी सोचें कि जिन पर हर साल बाढ़ आती है। बिहार, असम, ये ऐसे इलाके हैं, हिंदुस्तान की ही बात करें तो हर साल बाढ़ आती है। बिहार के अंदर आप जानते हैं कोसी जो नदी है, जिसको हम सोरो ऑफ बिहार, बिहार का गम है वो, हर साल उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है और बाढ़ आती है। इसी तरह असम में ब्रह्मपुत्र जो है, हर साल उसके ज़रिए से बाढ़ का माहौल, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। सोचिए ऐसे माहौल में किन किन चीज़ों की हिफाजत कर सकते हैं वो। उनसे डॉक्यूमेंट्स अगर मांगे जाएं, बेचारे कहाँ से डॉक्यूमेंट्स, अपनी ज़िंदगी बचा लें। 8 बरस की दुबली पतली रमकलिया जागी, 6 बरस का भीका जागा, दूध पीता पास लेटा बच्चा जागा, ये रोया वो चिल्लाए, ये माहौल हो जाता है बाढ़ आने पर। चुप करो चुप, माधव ने डांटा। रोने से क्या होगा, रोने से तो हाथ पैर फूलने लगते हैं इंसान के, तो वो चुप करा रहा है कि हिम्मत टूटती है रोता हुआ देखकर। खामोशी में माधव ने कान लगाए, बसंती ने ध्यान लगाया, ध्यान दिया। दूर कहीं से आवाज़ आ रही थी, गड़प शल शल शल, गड़प शल शल शल, पानी के बहने की, पानी के अंदर आने की आवाज़ भी सुना रहे हैं हमें। घुग्गू बोला, हुक हु, खटोले से कूद, पानी में छप छपाते बच्चे माँ से चिमटे। माधव उठा, देखने को दरवाजे की तरफ चला। बसंती रोई, अजी जावत कहाँ हो जी, तुम कहाँ जा रहे हो ऐसे ऐसे वक्त में? बाहर से आवाज़ आई, माधव भैया हो, माधव भैया, ओ माधव, अरे बाढ़ आई, उठ रे उठ। एक दूसरे को उठा रहे हैं। वो जो गांव कह लें या छोटा सा जो वो महल्ला है, उसमें अब लोग जाग चुके हैं, सब एक दूसरे को उठा रहे हैं, सबको एक दूसरे की ज़िंदगी बचाने की परवाह है। ये होता है हमदर्दी का एहसास, पड़ोसी को पड़ोसी की हमदर्दी जो हुआ करती है इंसान के अंदर, आज कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है। अफसोस की बात। शड़प गड़प शल छल छल, पानी के बहने की आवाज़ तेज़ी से बढ़ रही थी। मैं बकरी बोली, हाँ हाँ। अब अलग अलग जानवरों की आवाज़ें, कहीं गैयाँ चिल्ला रही थी। 12 घर के गुजर परोए में हलचल मच गई। 12 घर थे सिर्फ उस इलाके में। सब जाग उठे, सब भागने लगे। कोई पुकारता था, कोई चिल्लाता था, कोई रोता था। क्या करें, कैसे ज़िंदगी को बचाएं? क्या हो गया ये अचानक से रात में? ऐसे क्या सुकून की ज़िंदगी में एकदम से बाढ़ आ गई और सब कुछ तहस नहस होता हुआ नज़र आ रहा है। माधव ने रमकलिया को कोठे की सीढ़ियों पर खड़ा कर दिया। कोठा जानते हैं ना, जो छत वाला कमरा। भीका को गोद में लिया और सामान रखने और उठाने में लग गया। उसे कहा, सीढ़ियों पर रख दिया, उसने खड़ा कर दिया कोठे की सीढ़ियों पर, ऊंचाई पर थोड़ा सा। और फिर दूसरे छोटे बच्चे को उठाने लगा, सामान, ज़रूरी सामान। बसंती ने गोद वाली लड़की को दबाए दबाए तैरती हंडिया पकड़ ली। मटका कतराया हुआ परे से निकला जाता था, उसे पैर से रोका। घर के बाहर आदमी और जानवर चिल्ला रहे थे। घर के अंदर रमकलिया और भीका रो रहे थे। पानी का शोर अंदर और बाहर सब जगह था। बसंती और माधव घर के सामान में लगे थे। शोर हुआ, भागो बसंती निकल, अरे माधव भाग, घर का सामान इकट्ठा कर रहे हो तुम, अरे तुम अपनी परवाह करो, पानी बढ़ता चला जा रहा है, बाहर निकलो। क्या कर रहे हो, किस सामान की परवाह कर रहे हो? जिंदगी बच जाएगी तो सामान तो रहेगा। पानी ने हिचकोला लिया, पिंडली से उचका रानों तक आया। अब ऊपर आने की जो आवाज़ होती है पानी की, वो बल खाते हुए जो ऊपर चढ़ रहा है, पानी बढ़ता चला जा रहा है। अब पिंडली से लेकर रानों तक आ गया। भागो भागो माधव भैया, भागो रे, अरे हो, अरे का हो गया, निकलत काहे नहीं, क्या हो गया तुम्हें, तुम निकल क्यों नहीं रहे? बाहर से आवाज़ें आईं। पानी ने फिर हिचकोला लिया, आगे बढ़ा, पीछे हटा और रान से अब कमर तक आ गया। बसंती रोई, अरे मोरे कड़वे, अरे मोरी हंसली तो निकाल ले रे। अपना अलग अलग सामान का जिक्र कर रही है। चल चल तू चल निकल, मैं लाया, अरे नून चून तो लिए लूँ, नून चून आटा नमक तो ले लूँ, कैसे खाएंगे जहाँ जाएंगे, ओढ़ना बिछोरा तो दहाए लूँ, ओढ़ना बिछोना तो ले लूँ, ओढ़ने बिछोने का सामान, जहाँ जाएंगे वहाँ लेटना तो होगा। अब ऐसे वक्त में इंसान सोचता है कि क्या क्या कीमती चीज़, कौन कौन सी कीमती चीज़ है जिसे बचा लूँ, जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी और बाद में काम आएगी, और उसके बगैर गुजारा नामुमकिन हो जाएगा। पानी का शोर था, 4 आदमियों का चिल्लाना था, दरवाजे पर धक्के थे।
अरे ये लोग निकल नहीं रहे, सब लोग सोच रहे थे इन्हें क्या हो गया, तो दरवाज़ा धक्का देने लगे थे दरवाजे पर पड़ोसी आकर, तो वो खुल गया। आदमी घर में आ गए, माधव और बसंती को पकड़कर घसीटा, चालो चालो सब छोड़ो, सब छोड़ दो, अरे जान ही बचाए लो, चलो चलो सब छोड़ो, ये क्या सामान उठाने में तुम लग गए हो। इस गड़बड़ में, जल्दी में, घबराहट में, अंधेरे में दरी बिछोरे कपड़ों के लिए पुकारती, बर्तनों और जेवरों के लिए फड़कती बसंती ने यह भी कहा, भैया रे रमकलिया को ले ले रे। लालटेन डूब चुकी थी। अंधेरे में किसी ने जवाब दिया, मुंह उठाए लूं, तू चल, अरे निकस बाहरे। अब देखिए, इस गड़बड़ में, जल्दी में, घबराहट में किस तरह से अलग अलग एहसास, अलग अलग बातों को जमा कर दिया कि गड़बड़ थी, जल्दी का मामला था, ये उठाएं वो उठाएं, घबराहट भी थी, तेज़ भी निकलना था, अंधेरा भी था, दरी बिछोरे कपड़ों, सबके लिए पुकार रही थी वो, बर्तनों के लिए, जेवर वहाँ रखे हैं। ऐसे पुकारते पुकारते उसे अपनी बच्ची का भी एहसास, बच्ची का भी उसने नाम लिया, अरे 6 साल की या जितने भी साल की रमकलिया उसका नाम है, अरे उसको भी ले लो। लालटेन तो डूब चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, तो किसी ने आवाज़ आई, मैं उठा लूँगा, और तू चल, अरे निकल बाहर, निकल बाहर, उसे मैं उठा लूँगा, तू बाहर निकल। पानी की शलशल, रात अंधेरी, बादल की गरज, ये सब कुछ, कमर कमर, सीने सीने पानी में 20-30 आदमी, 50-60 मवेशी चलने लगे। अब कमर तक पानी है, सीने सीने तक पानी है, 20-30 लोग हैं, 50-60 जानवर हैं, सब चल रहे हैं। हर आदमी बोल रहा था। ऐसे वक्त बोलना बहुत ज़रूरी होता है ताकि दूसरे को पता चल जाए, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, किसी को घबराहट ना हो। अंधेरी रात है, फिर रोशनी भी नहीं है। हर जानवर चिल्ला रहा था, और बोलने की दूसरी वजह परेशानी भी थी ना, परेशान थे सबके सब। कोई गिरता था, संभालता था, कोई डूबता था, अरे मुझे उठाओ उठाओ उठाओ, डूब रहा है कोई। हाँ, तो इस तरह क्या है, हर शख्स ही दूसरा उभारता था, ऊपर उठा लेता था। शुरू में तो सब जत्था बनाए, एक दूसरे को संभालते, पुरुए से, उस मोहल्ले से बाहर चले। शुरू में तो जत्था बना रखा था, ग्रुप में चल रहे थे। आमों के बाग के अंदर से आकर पौन मील के फासले पर रेल की पटरी का रुख किया, लेकिन जूं जूं आगे बढ़ते गए, अंधेरे में एक दूसरे से अलग होते गए, रास्ते बदलते गए, थोड़े थोड़े अलग होते गए। अंधेरा बढ़ता चला गया, कोई नज़र नहीं आ रहा, तो हुआ ये कि कुछ कुछ लोग अलग अलग हो गए। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ दिखाई न देता था, पानी कमर कमर ऊंचा था, साथ ही सब बिछड़ बिछड़ कर अलग हो गए थे। कई एक मौका ऐसा भी आता है कि जब इंसान मजबूर हो जाता है और बस उसको ये ख्याल रहता है कि मैं तो निकल जाऊं किसी तरह, पहले मुझ पर मेरी अपनी ज़िंदगी बचाने का हक़ है। तो इंसान कई मौक़ों पर इस तरह, इसीलिए लोग बिछड़ जाते हैं ऐसे मौक़ों पर। इधर उधर आप देखते हैं जब वो भगदड़ मच जाया करती है, उसमें भी यही हुआ करता है। इधर उधर, दूर और नज़दीक आवाज़ें उनकी आ रही थी, लेकिन आवाज़ें बराबर, वो कहीं दूर से, नज़दीक से आवाज़ें सुनने को मिल रही थी। जान की, हर कोई अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को पुकार रहा था, आए रहूं दादा, मुरली हो मुरली, भला रे भला, अच्छा हूँ अच्छा, चाले चलो, चलते रहो। डकराती भैंसें, चिल्लाती गायें, ममियाती बिक्रियाँ, रोते बच्चे, सहमी औरतें, पुकारते मर्द, सब भीगे, सब पानी टपटपाते रेल की पटरी पर चढ़े। अंधेरी रात में सूनी पटरी आबाद हो गई। वो पटरी जो है, जिसको कोई पूछने वाला ना था। रात को कोई एक ट्रेन गुजर गई तो गुजर गई, वरना पूरी सुनसान पड़ी रहती थी। और जी, वो आबाद हो गई अचानक से। लोगों ने गले फाड़ फाड़ कर पूछना शुरू कर दिया कि कौन कौन आ गया है और कौन कौन रह गया है। अब ज़रा पता लगा लें, सही जगह पर आ गए हैं, अब ज़रा देख लें कि कोई रह तो नहीं गया। अरे सब आ गए, नहीं आ गए, कोई, हर किसी को किसी ना किसी की फ़िक्र थी, हर किसी के दिल में किसी ना किसी का एहसास था, जो जिसको दूसरे को कमज़ोर समझता था कि शायद वो न रह गया हो, वो थोड़ा कमज़ोर है, वो न रह गया, वो थोड़ा कम होशियार है, वगैरह वगैरह। छोटे से परोए की पूरी आबादी की मरदमशुमारी की गई, गिनती की गई, सेंसस किया गया, गिनती की गई। मरदमशुमारी फ़ारसी, शुमार गिनना। आदमियों और जानवरों दोनों की गिनती की गई। जानवर तो सब मौजूद थे, आदमियों में एक का लड़का और बच्चों में रमकलिया कम थी, ये 2 लोग कम थे। बसंती ने रमकलिया के वास्ते बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। रमकलिया की माँ को जब रमकलिया नज़र ना आई, उसकी छोटी बच्ची नज़र ना आई, तो क्या करती, उसने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया कि अब तो ज़िंदगी बचाने का, उस रमकलिया की ज़िंदगी तो अब चली गई, वहाँ बाढ़ का पानी बढ़ता चला जा रहा है, कहाँ बची होगी। माधव भी चुपका खड़ा रोता था, लेकिन कर क्या सकते थे। अब कैसे जाएं वापस, कैसे उस गहरे पानी में, अभी तो ज़िंदगी बचा कर निकले हैं, अब दोबारा उधर कैसे चले जाएं। वहीं पर उनकी गोरी गाय खड़ी अर्राती थी, वहीं पर गाय भी खड़ी हुई थी जो रो रही थी। तू कहाँ आ, ये भी दुख पीटी माँ है, ये भी दुख पीटी माँ है, इसका भी बच्चा वहीं रह गया है। अरे कोई जाने या ना जाने, बछड़ा इसका भी नहीं मिलता है। दुखिया रोती है, तू कहाँ आ, किसी को नहीं पता मगर इसका, ये जानती है
गिनती तो हो गई, पूरी निकली, न जाने कैसे गिनती की, लेकिन इसको मालूम है कि इसका बछड़ा वहीं रह गया है। रोती हिचकियां लेती बसंती के पास बोलती हुई गाय आई। बसंती ने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी और रोई। गोरी रे मोरी रमकलिया, रो रही है। जब वो बसंती के पास वो गाय बोलती हुई आई, उसने देखा कि ये भी मेरे दर्द में शरीक है। ये माँ भी रो रही है, मैं भी तो रो रही हूँ, हम दोनों का दर्द एक जैसा है, हम दोनों की बच्चियाँ नहीं मिलती हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे के गले में, वो औरत वो बसंती गाय के गले में डालकर, गोरी रे अब तो है कौन चराए, गोरी तोरी रमकलिया तो गई रे, गोरी तो यही यही उसको चराने जाया करती होगी छोटी बच्ची। गाय ने वही लंबी आवाज़ निकाली, कोई जाने न जाने दिल की लगी राम जाने। गाय ने चिल्ला चिल्ला कर और बसंती ने सिसकियां लेकर आखिर सुबह कर ही दी। ऐसे ही रोते 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 कोई उन्हें रास्ता ना सूझा, क्या करें, अंधेरा है, इस अंधेरे में कैसे जाएं, कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ तलाश करेंगे, पानी कहाँ बहा कर ले गया होगा। सुबह हो गई। निकलते दिन की पहली रोशनी में सबकी आंखें गुजर पिरोए की तरफ, अपने महल्ले की तरफ उठ गईं। देखे तो सही क्या हाल हुआ, बाढ़ ने रात को, पानी ने रात को क्या कुछ अंजाम किया है। सामने छोटा सा आमों का बाग था, उसी के बराबर और कुछ उसकी आड़ में गुजर पिरोया आबाद था, लेकिन अब वहाँ कुछ न था। आबाद था रात तक, मगर अब वो बर्बाद हो चुका था। अगर कोई बचा खुचा मकान होगा तो दरख्तों की आड़ में होगा, अगर कोई मकान रह गया है, वरना सब के सब डूब गए। सामने तो कच्चे मकान, सामने तो बाग ही बाग था, जिसके दरख्त अपने हरे हरे हाथ पानी पर फैलाए मल रहे थे, और फिर उनके पार मीलों मीलों जहाँ जहाँ तक नजर जाती पानी ही पानी था, जबरदस्त पानी था। जब तक अंधेरा रहा, हड़प कड़प कड़ाप करते पानी ने रमकलिया को खूब ही डराया। अब रमकलिया की तरफ हमें लेकर चल रहे हैं कि वहाँ क्या हुआ रात को। सारे लोग तो गुजर गए, रात को ये सब मंजर पेश आया, लेकिन वो रमकलिया जो वहीं रह गई थी, जिसको कोठे की सीढ़ियों पर खड़ा कर दिया था, उसके साथ क्या हुआ। रात भर तो क्या हुआ, जब अंधेरा था, हड़प कड़प कड़ाप करते करते पानी ने खूब डराया कि अब आया अब आया अब आया, और रोते रोते बेदम गज भर की लड़की का आने वाले दिन ने भीनी भीनी रोशनी फैलाकर दिल ही दहला दिया। जब रोशनी आई, जब दिन निकला, जब जो उसने अपने चारों तरफ देखा, तो बस उसका तो दिल ही दहल गया। एक दफ़ा ही चौंक कर देखती है तो न मकान है न गांव है। रात को पता नहीं चला उसको, लेकिन सुबह जब देखा कि बर्बादी का क्या मंजर है, तो उसने देखा कि वो सब कुछ बर्बाद हो चुका। वो सारी गलियां, वो सारे मकान के जहाँ वो खेला करती थी, सब गायब हो चुके हैं। आधे से ज़्यादा कोठा बह चुका है। एक कोने पर खुद बैठी है, दूसरे कोने पर काला सांप कुंडली मारे बल खाया बैठा दोहरी जबान निकाल रहा है। सामने चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसा खौफ का मंजर है। छोटी सी बच्ची है। रमकलिया ने दोनों हाथों से आंखें मूंद ली थी और अरे मैया रे, ओ मेरी मैया, बस रोती जाती। ये क्या करे, कैसे क्या करे अपनी जिंदगी का, कहकर बिलक रही थी कि उसके कान में आवाज आई, तू का आ। रमकलिया चौंकी, हाथ आंखों पर से हटे, आंसू बहते मुर्दा चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई, एक उम्मीद की किरण नजर आई। गाय की आवाज़, उसको अपनी गाय की आवाज़ सुनाई दी। उसको लगा कि अब कोई आ गया है, अब मेरे गम में कोई शरीक हो गया है। ये बहुत अहम चीज़ है। हमारे आसपास अगर कोई गम में दिखाई दे, तो हम अगर उसके गम में शरीक हो जाएं, उसको बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत सहारा मिलता है। उसको लगता है कि मेरी तरह भी लोग हैं, परेशान हैं। हम सब के सब परेशान हैं, कोई ना कोई परेशानियां सबके साथ लगी हुई हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हैं, आजमाइश के लायक हालांकि हम नहीं हैं। लेकिन हम क्या करते हैं ना, अपनी ज़िंदगी का सिर्फ पॉजिटिव पहलू, अच्छा पहलू दुनिया को दिखाते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, बस खुशियाँ खुशियाँ दिखाते हैं, और आदमी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुढ़ रहा है, अपने गम को छुपाए बैठा है। उसको वो जानता है कि दूसरे लोग मेरी गमगीन बातें, मेरी तकलीफ़ की बातें क्यों सुनेंगे। सबको खुशी की बातों में दिलचस्पी है। सबको ये बताओ तुमने नया फ़ोन ले लिया है, पार्टीज़ करो, पार्टी में बुलाओ, और ये अच्छी अच्छी बातें बताओ, बस पार्टीज़ में लेके जाओ, शादियों में बुलाओ, और नए नए कपड़े पहनो। बस गम की कोई बात ना हो, परेशानी की कोई बात ना हो, ना किसी की सुनो ना किसी की कहो। बस ये आदमी क्या है, मस्ती के आलम में, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं परेशानी, दुख तो हर किसी के साथ किसी ना किसी तरह लगा हुआ है। वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बढ़ रहा होता है, लेकिन वो जिक्र नहीं कर पाता। इसीलिए क्या है कि हमें अपने गम का, दूसरों के गम का क्या है, शरीक बनना चाहिए, साथी बनना चाहिए। दूसरों के गम का साथी, खुशी के साथी सब हैं, गम के साथी बनो। तकलीफ़ के वक्त में दूसरों का साथ निभाओ, चाहे वो तुम्हारे साथ तकलीफ़ के वक्त खड़ा था या नहीं खड़ा था, तुम खड़े हो जाओ। अदला बदले से काम नहीं चलेगा, अदला बदला करेंगे तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा।
आवाज़ फिर आई। रमकलिया ने हरे राम गोरी बोले कहते हुए चारों तरफ देखा। गाय दिखाई तो नहीं दी, लेकिन रमकलिया ने अपनी पूरी ताकत से पुकारा, गोरी हो गोरी। नज़र नहीं आ रही थी ना, तो पुकारा ताकि उसको पता लग जाए मैं इधर हूँ। जवाब आया, तू कहाँ? और फिर बाग में से तैरती हुई गाय निकली। रमकलिया ने फिर पुकारा। वो उसी की तरफ बोलती हुई बढ़ी, लेकिन दूर से एक और आवाज़ आई, उमा आ, उमा आ। एक बछड़ा अपनी माँ को पुकार रहा था। अब कशमकश की सूरत है, पहले किधर जाए? अपनी माँ अपने बच्चे को पहले बचाने के लिए जाए, या पहले इस रमकलिया को जो उसकी मालकिन की बच्ची है? बाग की आड़ से बछड़े की आवाज़ थी। गाय उस आवाज़ की तरफ घूम पड़ी। रमकलिया का नन्हा सा दिल बैठने लगा। जब वो आवाज़ दूर जाने लगी, जब उसने देखा गाय मुड़ गई है, उसका नन्हा सा दिल बैठने लगा। अब क्या होगा? वो रात भर रोने और हिचकियाँ लेने से थक चुकी थी, फिर भी अपनी सकत भर, अपनी ताकत भर चिल्लाई जितना चिल्ला सकती थी, गोरी हो गोरी, गोरी हो गोरी, अरे गोरी रे आए जा, गोरी मैया आए जा री। लेकिन गोरी ने रुख न बदला, वो उधर ही चलती चली गई। अलबत्ता हाँ, दो चार दफ़ा सर घुमाकर रमकलिया की तरफ देखा, हालांकि है ना, अर्रा कर बोली, और फिर उधर ही तैरती चली गई जिधर से बछड़े की आवाज़ आ रही थी। बाग की आड़ से निकलते ही गाय को बछड़ा उसी जगह तैरता हुआ नजर आया जहाँ सरे शाम वो उसका बछड़ा और बैल बांधे गए थे। शाम को जहाँ बांधे गए थे वो वहीं नज़र आए। शायद वो ये देखना चाहती हो कि पहले मुझे इस बच्ची का तो मालूम हो गया कि ज़िंदा है, अब मुझे अपने बच्चे का भी मालूम हो जाए कि वो किस हाल में है। शायद वो इसीलिए पहले अपने ही बछड़े की तरफ बढ़ गई थी। अब वहाँ न खेत था न झोपड़ी, जगह वही थी, लेकिन अब सिवाय पानी के कुछ नजर न आता था। बच्चे की आवाज़ का जवाब देती तैरती तैरती उसके पास गई, चारों तरफ घूमी, उसे सूंघा, एक दफ़ा उसकी थूथनी भी चाट ली और फिर एक तरफ को तैरती चली गई, मगर बच्चा न चला। वो चलाने की कोशिश कर रही थी, चले, वहीं तैरता रहा। गाय फिर लौट आई, चारों तरफ घूमी, बराबर आकर अपनी कमर और पेट से उसे ढकेला कि निकले, चले यहाँ से, हिले। एक तरफ चली, बच्चा साथ न आया, तो फिर लौट आई। अब वो कुछ समझ गई कि कुछ वजह है कि बच्चा क्यों नहीं चल पा रहा। बच्चा 6 फीट ज़मीन में गड़े हुए घूंटे में रस्सी से बंधा हुआ था, घूंटे में बंधा हुआ था, और रस्सी बस इस कदर लंबी थी कि अब तक तो किसी न किसी तरह बछड़े की नाक पानी से बाहर थी, लेकिन अगर पानी 1 इंच भी और बढ़ जाए तो रस्सी की वजह से नाक डूब ही जाए। गाय ने मायूस होकर चिल्लाते बच्चे को वहीं छोड़ा और फिर रमकलिया की तरफ रुख किया। जब अल्लाह को बचाना होता है तो देखो, 1 इंच अगर पानी और आ जाए तो नाक डूब जाए और वो उस मौत की तरफ बढ़ जाए। अल्लाह को जब किसी को बचाना होता है तो इस तरह बचाते हैं, और जब किसी का वक्त आ ही जाता है तो अल्लाह उसको अपने पास। आपने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से वाक़यात सुने होंगे जहाँ करिश्मे होते हुए देखे गए, सुने गए कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ कहाँ कहाँ से बच जाया करती हैं, और कई मरतबा छोटे छोटी वजूहात से, छोटे छोटे हादसे में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। रमकलिया रोने चिल्लाने की थकन, डर, खौफ और आखिर में इंतहाई नाउमीदी का अब तक मुकाबला करती रही थी। अब एक बच्चे की नफ्सियात, साइकोलॉजी का नक्शा खींचा है कि क्या होता है। रोने चिल्लाने की थकन है, डर है, खौफ है, और क्या है, इंतहाई नाउमीदी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं नहीं बच सकती। नाउमीद हो जाता है इंसान। नाउमीदी ही कुफ्र है, कुफ्र तक ले जाती है। नाउमीदी से बचना चाहिए। हाँ, कुरान में आता है कि नाउमीद नहीं होते अल्लाह की रहमत से मगर वो लोग जो गुमराह हैं। याद रखें कि कैसे भी हालात आ जाएं, उम्मीद का दामन मत छोड़िए, अल्लाह हालात को बदल देगा। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इन्न मअल उसरि युसरा, तकलीफ़ के साथ, तकलीफ़ के बाद नहीं, विद डिफ़िकल्टी, तकलीफ़ के साथ आसानी है। याद रखें अल्लाह का ये वादा कि हर तकलीफ़ के साथ आसानी है। आज़माता है वो, आज़माइश में अल्लाह ताला सब्र जिसको करने की हिम्मत तौफ़ीक दे, उससे मांगना चाहिए, जमे रहना चाहिए। आजकल जो हम ख़ुदकुशी के मामलात, अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाने के मामलात में बढ़ोतरी देख रहे हैं, उसकी वजह यही नाउम्मीदी है। हाँ, उन लोगों का परवरदिगार पर यकीन कमज़ोर होता है जो लोग ज़िंदगी को इस तरह से बचना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने परवरदिगार से उम्मीद लगाए रहें कि नहीं, हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। उम्मीद की किरण हमेशा ज़िंदा रखें, अल्लाह के करीब जाएं, उससे दुआ करें, हिम्मत मांगें, मदद मांगें, वो हालात को बदलता है। लेकिन आखिर 8 बरस की नन्ही जान ही तो थी। गाय जब उसके पास आई तो वो गिरती हुई छत के किनारे बेहोश पड़ी थी। अब जब दोबारा गाय लौट कर आई ना अपने बछड़े के पास से, अब तो वो बेहोश पड़ी थी। गोरी ने आकर कई आवाज़ें दी, और जब भी रमकलिया को होश ना आया तो खुरदुरी गरम गरम जबान से उसका मुंह चाटा।
कितनी समझदारी गाय ने दिखाई है। देखिए, लड़की को होश आ गया, पहले तो डरी, फिर गोरी को देखा। गोरी मैया कहती हुई उसके गले में चिमटी। गोरी ने दो पैर मारे, आगे बढ़ी। रमकलिया छत से घिसट कर पानी में आ गई। उसने डर के मारे पैर चलाए और चिमट चिमटाकर गोरी की पीठ पर आ गई और वहीं छिपकली की तरह लेटी लेटी चिमट गई। गोरी फिर बछड़े के पास आई, वही हरकतें जो पहले की थीं फिर की। कई दफा उसके गिर्द चक्कर लगाए और चली। जब बछड़ा साथ न चला तो लौट आई। अब रमखलिया की भी समझ में आ गया कि क्या बात है। छोटी बच्ची है लेकिन वो गाय को चराने जानती है, वो भी जानती है क्या हो रहा है। ये इतनी समझदार वो भी है। जैसे ही एक दफा फिर गाय तैरती हुई बछड़े के पास गई, रमखलिया ने औंधे मुंह लेटे लेटे एक हाथ बढ़ाकर बछड़े के गले से रस्सी की गांठ निकाल दी। ऐसे वक्त में हिम्मत को थामे रहना कितना ज़रूरी होता है कि कई मर्तबा छोटी सी गलती और छोटी सी हिम्मत की कमी जो है बड़ा हादसा उसकी वजह से ज़रिए से हो जाता है। तो ऐसे मौक़ों पर देखते हैं कि समझदारी से काम लेना और हौसला, हिम्मत थामे रहना, बांधे रहना बहुत अहम हो जाता है। बछड़ा आज़ाद हो गया। गाय और बछड़ा दोनों तैरते हुए चले। रमकलिया गाय पर चिमटी हुई थी। बाग और रेल की पटरी की तरफ से धार चल रही थी, इसलिए दोनों बहाव ही की तरफ तैरते चल दिए और 2.5 घंटे के बाद बहुत चक्कर खाकर फिर उसी रेल की पटरी पर चढ़ आए। दिन के 12 बजे, जिस वक्त आगे आगे गोरी, पीठ पर रमकलिया, पीछे बछड़ा उमा आह के सवाल जवाब करते गांव वालों में पहुंचे तो हलचल मच गई। लोग मारे खुशी के कूदते थे। बसंती खुशी के मारे धारों धार रोती हुई कभी रमकलिया को गले लगाती थी, कभी बछड़े को, और कभी गोरी के चिमटती थी और गाय कहती थी, तुम माँ आह, हम माँ आह। आवाज़ आई, बोल गोरी मैया की जय। तो देखा हमने कि किस तरह इन्होंने एक छोटे से बाढ़ का, एक रात का वाक़या, उसके आसपास अपने अफ़साने को, अफ़साने का ताना बाना बुना है और किस तरह से हमारे दिल में ममता के तासुरात को, ममता के जज्बे को, वो जज्बा जो माँ के अंदर हुआ करता है उसको उभार कर इन्होंने दिखाया है कि गाय ने किस तरह बछड़े की ज़िंदगी मुकम्मल तरीक़े से बचाने से पहले रमखलिया की ज़िंदगी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा और किस तरह गाय ने उस बसंती के ममता के जज्बात को समझा कि ये भी माँ है, मैं भी माँ हूँ। तो ये एहसास जो होता है कि जानवर और इंसान, इस तरह इन्होंने जो दोनों बाहमी ताल्लुकात हैं इंसान और जानवरों के, वो दिखाने की कोशिश की है। यकीन करें, आज लोग जानवरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, बच्चे पत्थरों मारते हैं कुत्तों के, और इसी तरह जो सामान लाद कर जानवरों को ले जाते हैं वो चारा सही से नहीं खिलाते, सामान ज़्यादा लादते हैं, जुल्म कर रहे हैं। याद रखें, शरीयत के अंदर जानवरों के हुकूक बयान किए गए हैं। किसी को बेजा सताना यकीनन गुनाह है और सज़ा का बायस है। आप जानते हैं, एक औरत, उसको इस वजह से जहन्नम में डाला गया, जहन्नम उसका मुकद्दर बन गई कि उसने एक बिल्ली को कैद रखा। न तो खुद खाना दिया, न आज़ाद कर दिया कि ये अपना खाना खुद तलाश कर सके। कैद रखा तो अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम का रास्ता दिखाया, जहन्नम में पहुंचाया। और दूसरी तरफ एक वो औरत जो बहुत गुनहगार थी, लेकिन उसने एक प्यासे कुत्ते को देखा, प्यास से उसको फड़कता हुआ देखा, तो उसने कुएं से पानी का इंतज़ाम करके उस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। उसके इस अमल से खुदा इतना राज़ी हो गया कि उसने उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। आप गौर करने की बात पढ़ें, लफ्ज़ मानी पढ़ें। यहाँ आप देख रहे हैं, कहानी थी, किस्सा था, अफसाना। मुझे लगता है शुरू के 4 सवालात आप आसानी से इसको पढ़कर कर सकते हैं। 5वां सवाल, ममता के जज्बे के आगे तमाम जज्बात हेच हैं, यानी कुछ नहीं है। हेच मतलब फ़ारसी का लफ्ज़ है, हेच मतलब कुछ नहीं है, कोई हैसियत नहीं रखते हैं। यानी कितने ही जज्बात हों दुनिया के अंदर, बाहमी हमदर्दी के कितना ही जज्बा हो, लेकिन जो माँ का जज्बा है अपनी औलाद के लिए, माँ होने के खातिर जो जज्बा है, आप जानते हैं औलाद की खातिर पैदाइश से लेकर परवरिश का बोझ किस कदर हुआ करता है, और हम बड़े होकर किस तरह वो सब भुला देते हैं, किस तरह हम नाकदरी करते हैं अपने माँ बाप की, वो सब गौर व फिक्र करने लायक है। और याद रखें कि माँ बाप की खिदमत करने वाला अपने लिए जन्नत में घर बना रहा है। तो ये आप लिखें कि ममता के जज्बे के आगे किस तरह सारे जज्बात की कोई हैसियत ही नहीं है। कोई कितना ही बड़ा जज्बा हो, लेकिन माँ की अपने बच्चों के लिए जो हमदर्दी है वो अपनी किसी भी हद तक चली जाती है, जायज़ हद तक, जो भी जायज़ हद हो सकती है, अपनी औलाद की परवरिश के लिए, अपनी औलाद की जो है जान बचाने के लिए, जैसा इस अफसाने में देखा, और उनको खुश रखने के लिए, उनको सेहतमंद रखने के लिए
چھٹا سوال ہے، گوری کے کردار پر مختصراً لکھیے۔ آپ شارٹ نوٹ لکھنا ہے آپ کو کہ گوری کا کردار، اس گائے کا کردار جس نے اس بچے کی زندگی کو بچایا، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا کہ میرا کیا ہوگا نہیں معلوم، نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا وہاں جا کر، نہیں، اس نے دوسروں کی زندگی کو بچانے کے لیے، خاص طور پہ اپنے بچوں کی اور اپنی بسنتی جو اس کی مالکن ہے اس کی بچی کو بچانے کے لیے کس طرح سے اس نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا اور ہمت سے کام لیا، بہادری سے کام لیا۔ ممتا، یہ جذبات بہادری بھی تو پیدا کرتے ہیں نا۔ عقل تو روکے گی، عقل کہے گی نہیں مت جاؤ، لیکن عشق، جذبہ، ممتا کا جذبہ کہے گا نہیں، اس سمندر میں یا اس پانی کے بہاؤ میں کود پڑو اور بچاؤ جا کر۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا۔ ایک بار خود مطالعہ کریں اور سوال و جواب لکھنے کی کوشش کریں۔